Hi all, a very good evening to all of you. I hope all of you are doing well and are in good health. यार जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो अलजेब्रा पे बेस्ड है एज यू कैन सी बट ट्रस्ट मी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर ए और बी इंटीजर्स हैं इफ ए एंड बी दे बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है देन वी नीड टू फाइंड the values of a and b which satisfies these two conditions a par a plus b that is equal to b par 12 and b par b plus a that is equal to a cube right तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के पावर्स में क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हम ट्रिवियल केसेस चेक कर लेते हैं when a is 0 तो क्या होगा when b is 0 तो क्या होगा if a is 1 b is 1 if a is -1 b is -1 ये सब केसेस हम चेक कर लेते हैं because 0 power anything any positive thing can be 0 है ना 1 raised to power anything is 1 minus 1 raised to power even is 1 minus 1 raised to power odd is 1 ठीक है तो let's check one by one if a is 0 so we can say that this will become b power b equals to 0 which is practically not possible because x raised to power x cannot be equal to 0 so a equals to 0 rejected okay now let's see when what happens when b is 0 if b is 0 this first equation will become a power a equals to 0 which is again not possible and hence b equal to 0 rejected. Now let's see what happens when a is 1. Okay. If a is 1, we get 1 equals to b part 12. That will imply b is either plus 1 or b is minus 1. Okay. Now let's see the second equation. Second equation is b raised to power b plus 1. That is equal to 1 because we have considered a to be 1. So b equal to 1 clearly satisfying this equation. B equal to 1 satisfies this. So 1 comma 1 is one of the ordered pair. Now let's see what happens when b is minus 1. So this will become minus 1 raised to power 0, which is again 1. So 1 comma minus 1 is another pair which is satisfied. ठीक है तो a equal to 1 से हमें दो order pairs मिलते हैं 1 comma 1 and 1 comma minus 1 right. Now let's see when b is 1 so can we get some additional pair. Let's see ठीक है if b is 1 so this equation will become a raised to power a plus 1 that is equal to 1 right and this will become a cube equals to 1. If a cube is 1 then a is 1 so b equal to 1 पे हमें a की सॉल्यूशन मिल रहा है a equal to 1 जो इसको सेटिस्फाई क्लियरली कर रहा है which we have already taken तो b equal to 1 वाला केस ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गया. Now let's see a equal to -1 and b equal to -1 ठीक है a equal to -1 से आपको कोई एडिशनल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इक्वेशन से हमें मिलता है b पावर b -1 that is equal to -1. This कहानी should imply b should be equal to -1 because -1 का power anything can be -1. It can be positive one also, but this is the only possible solution. But -1 इसमें put करते हैं तो this will become -1 raised to power -2 which is actually 1. So -1 कभी भी आ नहीं पाएगा. That means a cannot be equal to -1. And similarly अगर मैं b को -1 डालता हूँ तो what exactly is the problem यहाँ पर हम देखते हैं. और you can say यहाँ पर हम देखते हैं तो this will become a raised to power a minus 1 that is equal to 1 ठीक है तो a की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी. a की वैल्यू 1 होने पर we have the solution ठीक है 1 comma -1 we already have it and if a is -1 we have already rejected the solutions कि a equal to -1 से कोई नया solution नहीं मिल रहा था right. So practically these are the only two solutions जो ट्रिवियल केसेस से आ रहे हैं जब a b 0 1 या -1 से बिलोंग करते हैं ठीक है. Now let's explore whether we can have some additional solution apart from these two solutions ठीक है देखते हैं अब देखो what we can do यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन में let's take cube root on both the sides so it will become b power b plus a upon 3 that is equal to a. Now let's substitute this value of a over here. So what we will get b power b plus a upon 3 whole raised to power a plus b that is equal to b power 12. So this whole story will become now b power a plus b squared upon 3 that is equal to b power 12 ठीक है. अब आई गेस आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि मैंने वो जो पहले ट्रिवियल केसेस लिए थे वो क्यों लिए थे बिकॉज b रेस्ट अगर कभी भी ऐसा आता है b रेस्ट टू पावर x दैट इज इक्वल टू b पावर y तो हम सीधा x इक्वल टू y नहीं कर सकते हैं बिकॉज b कैन बी 0 b कैन बी 1 b कैन बी -1 वो सारे केसेस हमें ऑटोमेटिकली देन लेने पड़ते हैं जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं. अब उसके अलावा वी कैन डायरेक्टली इक्वेट a प्लस बी स्क्वायर्ड अपॉन 3 दैट शुड बी इक्वल टू 12. ये दोनों चीजों को हम इक्वेट कर सकते हैं. That will imply a plus b
squared is 36 and that will further means a plus b is either plus 6 or it will be minus 6. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कहानी आई, हमारे पास बन गया कि a प्लस बी का वैल्यू या तो प्लस 6 होगा या फिर a प्लस बी का वैल्यू माइनस 6 होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, अगर हम लेट्स टेक दिस केस, अगर a प्लस बी प्लस 6 होता है तो यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो विल गेट b पावर 6 दैट इज इक्वल टू a क्यूब, और इन अनदर सेंस a इज नथिंग बट b स्क्वायर। अब ये a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो वी विल गेट b स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 6 व्हिच इज अ क्वाड्रेटिक इन b, जिसकी दो वैल्यूज आ रही हैं क्लियरली, वन इज -3 एंड द अदर वन इज 2। ठीक है, if b is -3 then a will be 9 and if b is 2 then a will be 4. So these are the two more solutions that we got from this part when a plus b is 6. Clearly दोनों इसको satisfy कर रहे हैं as you can see, आप check कर सकते हो। ठीक है, this is 9 raised to power 6 that is equal to -3 raised to power 12 which is obvious। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप ये डालोगे 4 raised to power 6 that is nothing but 2 raised to power 12, both the solutions are satisfying first equation। ठीक, now let's proceed when a plus b is -6। if a plus b is -6 then this will become b raised to power -6 that is equal to a cube, or in another sense a cube b power 6 that is equal to 1, and this is only possible if a and b are integers, तो a और b वही plus minus 1 में घूमेंगे, right, which we have already taken in the trivial cases। So two additional solution हमें यहाँ पर मिले and दो solution हमें मिले थे यहाँ पर, तो in all we have obtained four distinct solution। Let me write the solution 1, 1, 1, -1, right, और क्या था 9, -3 and 4, 2। These are the four solutions। So how many solution, number of solution, they will be simply 4 ordered pairs, right। I hope ये वाला क्वेश्चन आपको अभी समझ में आ गया। Thank you for watching the session here। I hope you must have enjoyed the session and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th of October, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम ऑल्दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ बैच, अ न्यू बैच IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of July बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल थ्री विल बी टीचिंग। ठीक है, लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाइलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th of March 2022 को हुआ था। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए थे, बट यस जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली एवरी सेकंड स्टूडेंट आउट ऑफ 2, 1 क्लियर्ड IUQM, 1 क्लियर्ड pre-RMO, जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली। ठीक है, तो आउट ऑफ 2, 1 क्लियर्ड IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना, 450। बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम। ठीक है, तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से
5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम एंड यस मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए हैं, राइट? एंड वी हैव वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right, having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको. इसमें सारी चीजें जो IUQM का syllabus है, that means number theory, algebra में भी sequential series, quadratic, polynomial, सब चीजें, fractional part function, greatest integer function, geometry, number theory, combinatorics, right? फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे. टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न. ठीक है, यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड. पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट? सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस. उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे. ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे. Again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें बहुत. अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया. उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया. नाउ इट, देखो क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है. अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने, देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली IUQM क्लियर होगा ही होगा, राइट? एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ IUQM तक, आप IUQM तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू. ठीक है, 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा. इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, IUQM की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक IUQM का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू. आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट? एंड सिर्फ IUQM नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे IUQM क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा. ठीक है, उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट? इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%. तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड. ठीक है, CGPRO. ठीक है, अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है. ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं. तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12 में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो. अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएगी. बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से, 9 से एंड सो ऑन, राइट? अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स.
बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो, एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में IUCAM अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।